স্টার্ট করার আগে কিছু জনকে ইনভাইট করে নিই। আর এইটা স্টেলাইজেশন নিয়ে একটা লাইভ, যদি পারো তো শেয়ার করো। কেন স্টেলাইজেশন করা দরকার, কিসের জন্য দরকার, সেই বিষয় নিয়ে এই লাইভটা। কিছু জনকে ইনভাইট করে নিই। আর যারা যারা দেখবে একটু বলে দেবে আমার ভয়েসটা ঠিক শোনা যাচ্ছে কিনা। ওকে, আমি একটু ইনভাইট করে নিই কিছু জনকে। আচ্ছা, যারা দেখছো নমস্তে, একটু শেয়ার করে দিও। এটা স্টেলাইজেশন নিয়ে একটা লাইভ, ছোট কি বড় বুঝতে পারছি না, বলতে বলতে কতক্ষণ সময় লাগবে, বাট আমার ভয়েস ঠিকঠাক শোনা যাচ্ছে কি একটু জানিয়ে দিও। আর কারণ আমার এই সময় নেটের প্রবলেম হয়, তো একটু শেয়ার করো। ক্যাপশনটা দেখে নেবেন, যে এখানে লেখা আছে যে কেন স্টেলাইজেশন দরকার প্রত্যেক এরিয়ায়, সে বিষয় নিয়েই কিছু তথ্য বা কিছু কথা বলবো। খালি একটু বলে দাও আমার ভয়েস শোনা যাচ্ছে। আর পারলে এটাকে প্রত্যেকটা অ্যানিমাল রিলেটেড বা যেখানে মানুষ আছে প্রত্যেক গ্রুপে শেয়ার করো, কারণ মানুষের কাছে যতটা এই খবরটা যাবে বা এই লাইভটা যাবে ততটাই মানুষরা অ্যাওয়্যার হবে, মানুষরা সচেতন হবে, মানুষরা চেষ্টা করবে স্টেলাইজেশন করানোর জন্যে। তাই কিছু লিখে এনেছি আমি, যেটাকে আমি একটু লাইভ করেই বলতে চাই, লিখে অনেক সময় বোঝা যায় না। তো স্বর্ণালী পরমাণিক, আমার ভয়েসটা ক্লিয়ার আছে কি একটু জানিয়ে দিও। পারলে এটা প্রত্যেকটা অ্যানিমাল রিলেটেড গ্রুপ বা আদার্স গ্রুপে শেয়ার করে দিও। তা যদি একটু বলে দাও যে আমার ভয়েসটা ঠিক শোনা যাচ্ছে কি, তাহলে আমি লাইভটা স্টার্ট করি। কারণ এই সময় আমার নেটওয়ার্ক বহুত প্রবলেম চলে, তো বলার পরেই আমি হতে পারে আমি স্টার্টিং করে দিই। আর যা যা শুনছে একটু শেয়ার করো। আর শোনা যাচ্ছে কি আমার ভয়েস ঠিকঠাক, তাহলে আমি শুরু করে দেবো ওয়েট না করে। অলরেডি 8টার সময় আসার কথা, দেরি হয়ে গেছে, শরীরও সেরম দিচ্ছে না। একটু শেয়ার করো আর একটু আমাকে কমেন্ট করে জানাও যে আমার ভয়েস ঠিকঠাক শোনা যাচ্ছে কি না, তাহলে আমি স্টার্ট করি। হ্যালো 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 হ্যালো, একটু শেয়ার করে দিও যারা দেখছো। আর যারা এই অ্যানিমাল রিলেটেড কাজ করো তাদের জন্য এটা খুবই জরুরি, এটা জানা উচিত যে আমরা কেন স্টেরিলাইজেশন করাবো আর কিসের জন্যে করাবো। আচ্ছা ঠিক আছে, আচ্ছা তাহলে এবার সব জায়গা ओके। थैंक यू अविनेश सिंह। ये थोड़ा जितने भी एनिमल रिलेटेड ग्रुप है थोड़ा शेयर कर देना, ये स्टेरिलाइजेशन के बारे में ही मैं ये लाइव कर रहा हूँ। हाँ, बहुत कोई का क्वेश्चन है जो हम लोग क्यों डॉगी को स्टेरिलाइजेशन करवाए, वो लोग का नेचुरल लाइफ है, तो क्यों करना चाहिए स्टेरिलाइजेशन, इसी बारे में मैं आप लोग को क्लियर बताना चाहता हूँ। देखिए एक सिंपल सी बात है, डॉगी हम लोग सब प्यार करते हैं, मगर उन लोग का लाइफ जो है ना बहुत जल्दी ग्रोथ करते हैं, क्वांटिटी ज़्यादा होते हैं। আমি হিন্দিতে এই জন্য বলছি যে অনেকরা बिकॉज यू आर K3 जी देख लिए हमने, K3 हमने देख लिए हैं। अभी मैं स्टेरिलाइजेशन के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ, कुछ थोड़ा मैं होमवर्क किया हुआ हूँ, उसी बारे में मैं थोड़ा बोलना चाहता हूँ। और K3 जी मैं देख लिया हूँ। बात ये है, जो लोग एनिमल रिलेटेड जो काम करते हैं हम लोग, तो हम लोग सोचते हैं जो रास्ते के जो डॉगी हैं, स्ट्रीट एनिमल्स या कैट्स डॉग, तो सोचते हैं उन लोग का लाइफ ठीक ठाक से
দরকার আমার এখানকার দরকার ফিডিং করে নিজে পড়েন। হ্যাঁ, এটার জন্যই তো আমি লাইভটা করছি যে কেন দরকার स्टेरिलाइजेशन। ताई जारा जो लोग आप लोग देख रहे हो प्लीज़ हर ग्रुप में शेयर करो ताकि सबको पता चले। तो मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ, पहला एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। मैं लिख कर लाया हूँ, वही मैं सबको, ये देखो मैं होमवर्क करता हूँ, जो भी काम मैं करता हूँ तो पहले उसका बढ़िया से होमवर्क करता हूँ। हाँ हाँ बोलছি আমি बहुत होमवर्क करता हूँ, उसके बाद जाके मैं बोलता हूँ। तो जो लोग कहते हैं ना जो मैं स्टेरिलाइजेशन के अगेंस्ट में हूँ, मुझे स्टेरिलाइजेशन करवाना नहीं है अपने डॉगी को, स्टेरिलाइजेशन बेकार है, वो लोग का जीवन बर्बाद हो रहा है, तो मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ। सोच लीजिए, देवराज एक शेयर कर दियो प्रत्येकटा ग्रुपे, ओके, स्टेरिलाइजेशन ব্যাপারে। तो फॉर एग्जाम्पल पकड़ लीजिए एक गांव है, एक गांव में 100 परिवार है। ध्यान से सुनिए, एक गांव है, एक गांव में 100 परिवार माने 100टा फैमिली আছে একটা পাড়ায়। প্রত্যেকটা फैमिली एनिमल लवर, हर फैमिली एनिमल लवर है, मतलब डॉग को केयर करते हैं, खाना खिलाते हैं, जो जैसा काम करता अपने तरफ से, ओके। तो उस गांव में एक डॉग है फीमेल, ओके। अब हम लोग को सबको पता है जो डॉग साल में 2 बार बच्चे देते हैं, आफ्टर 6 मंथ, 6 महीना अंतर अंतर, 6 महीना अंतर अंतर बच्चे देते हैं। तो हर डॉग का एवरेज 6 से 7 बच्चे होते हैं एक बार में। तो साल में कितने बच्चे हुए? 14। अगर 7 का एवरेज पकड़े तो 14। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिस गांव में वो डॉगी है वो गांव का हर बंदा एनिमल लवर है, ओके। अगर वो बंदा सब एनिमल लवर है तो वहाँ पर एनिमल हेटर नहीं है, तो क्रुएल्टी नहीं है। पर क्यों उस एरिया में स्टेरिलाइजेशन चाहिए, अब देख लीजिए। उस 100 फैमिली रहते हैं, तो एक डॉग के 6 महीने में 7 बच्चे हुए, ओके, पकड़ लीजिए। तो वो 7 जनवरी में एक डॉगी के 7 बच्चे हुए, ओके। तो वो 7 बच्चे जब बड़े होते होते फिर 6 महीना हो जाएंगे, तो वो 7 और एक जो माँ थी तो वो 8 टोटल। अब वो 8, अब बोलोगे जो इसमें कुछ लड़की हैं कुछ लड़के हैं, हाँ श्योर, कुछ लड़की है, कुछ मेल कुछ फीमेल है। पर ये बात सोच लेना, बच्चे सिर्फ मेल या सिर्फ फीमेल से नहीं होते हैं, बोथ रहने से होते हैं। इसमें मैटर नहीं करते कि कितने फीमेल है कितने मेल है। अगर मेल ज़्यादा हैं तो किसी और फीमेल से मेटिंग करके बच्चे हो जाएंगे, तो मतलब बच्चे होने ही हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। तो अब वो 7 बच्चे अगर मेल हो तो किसी और एरिया में जाके किसी और डॉगी से मेटिंग करके बच्चे हो जाएंगे। तो इसका मतलब 7 हुए तो 7 का पकड़ना चाहिए। तो 6 महीना बाद यानी जुलाई को फिर वो 8 बच्चे हुए ना, जनवरी को जो 7 बच्चे हुए और माँ, टोटल 8 बच्चे हुए, 8 डॉगी हुए। तो 8 डॉगी जुलाई को, अब हर डॉगी 6 महीना में ऑलरेडी मेटिंग या प्रेग्नेंट हो जाते हैं, ओके। अगर मेल हो तो किसी और जगह चले जाते हैं, फीमेल हो तो खुद हो जाते हैं, मतलब हो जाते हैं। तो 6 महीना बाद हम लोग के पास कितने डॉगी रहे? 8। तो 8 इंटू फिर 7, 8 इंटू फिर 7 करने से कितने होंगे? 8 इंटू 7 करने से, मैं बता रहा हूँ ना, आप लोग भी कैलकुलेटर करते रहिए। पहले एक डॉगी के 7 बच्चे हुए, ओके, एक डॉगी के 7 बच्चे हुए। तो 6 महीना बाद 8 डॉगी हुए। तो 8 डॉगी 6 महीने बाद 8 इंटू 7 इजिकल कितने में 56 बच्चे हो गए। मतलब एक साल में एक डॉगी से 56 बच्चे हो गए। पहले जनवरी में एक फीमेल डॉग के 7 बच्चे हुए, फिर जुलाई 6 महीना बाद अब 8 बच्चे, 8 जो 7 बच्चे और वो माँ मिला के 8 डॉगी, तो 8 डॉगी के फिर 7 करके बच्चे हुए। तो एक साल में हम लोग के पास कितने डॉगी हुए? 56 डॉगी। एक साल में एक डॉगी से
হ্যাঁ বলছি, এক করে করে বলছি। তো এটা ভালো করে শোনো আর প্রত্যেকটা एनिमल रिलेटेड ग्रुप में शेयर करो। तो पहले जनवरी को एक फीमेल डॉगी प्रेग्नेंट हुए, उनका 7 बच्चे हुए। 6 महीना बाद 8 डॉगी प्रेग्नेंट हुए। या लड़की फीमेल है तो प्रेग्नेंट हुए, अगर मेल है तो किसी और एरिया में जाके किसी और फीमेल को प्रेग्नेंट किए। तो टोटल हुए 56 डॉगी। एक साल में एक डॉगी से 56 डॉगी हो गए। एवरेज 7 डॉगी पकड़ रहे हैं, हाँ उससे ज़्यादा होते हैं। तो एक साल में एक एरिया में 56 डॉगी अगर हो गए, तो 56 डॉगी को अगर हम हर रोज 5 रुपया खर्चा पकड़ते हैं खिलाने के लिए, 56 इंटू 5, ओके। अच्छा, एक डॉगी को एक दिन में 5 रुपया करके खिलाए, ओके। तो अगर हम लोग पहले जो डॉगी थे 8 डॉगी का 5 रुपये करके एवरीडे खिलाए, तो आपका कितना हुआ? 40 रुपया पर डे खर्चे होते हैं। 40 रुपया, वेरी गुड। 100 आदमी है, 100 फैमिली है, 40 रुपया इजी से आ सकते हैं। पर जब 6 महीने या 1 साल बाद वो डॉगी बन जाएंगे 56 डॉगी, तो 56 डॉगी इंटू 5 रुपया कितने हुए? 280, ओके। अब ये एक डॉगी के हर रोज 5 रुपया करके होने से तो आपके पास 6 महीना बाद 56 डॉगी के 56 इंटू 5 रुपये पकड़ते हैं, हर रोज 280 रुपये। हर रोज लगते हैं 280 रुपये खिलाने के लिए, हर रोज। अब 280 रुपये तो पर क्या फैमिली के कितने हुए? 2 रुपये 80 पैसे, ठीक है। पहले मैं बता दो बच्चे कितने होते हैं। तो एक साल में 56 बच्चे हो गए, ओके। अब वो 56 बच्चे फिर जनवरी में प्रेग्नेंट हो गए, तो 6 महीने बाद 56 इंटू 7, 56 इंटू 7 कैलकुलेटर करते रहो, 56 इंटू 7, तो 1.5 साल में 392 डॉगी हो गए यार एरिया में। 1.5 साल में याद रखना, 392 1.5 साल में, अगर आप एक डॉगी की स्टेलाइजेशन नहीं करवाओगे तो फिर वो 392 और पहले के थे 56, 392 और पहले के जो 56 डॉगी थे, ये तो 300 बच्चे हुए, 56 माँ को तो पकड़े उसको, तो 448। 1.5 साल में एक डॉगी से बन जाएंगे 448 डॉगी, ओके। अब ये 448 फिर दिसंबर में 6 महीना बाद फिर जुलाई को बच्चा देंगे इंटू 7, तो 2 साल में एक डॉगी से बन जाते 3000 डॉगी, 3136 डॉगी। 3136 डॉगी का पर डे खर्चा कितना होगा? 3136, हर रोज 5 रुपये करके पकड़े तो हर रोज 15,000 रुपये खर्चे होते हैं। तो जितने भी बड़े हर रोज का 15,000। अब ये 15,000 का 15,680 रुपया को अगर हम 1 महीना खिलाते हैं तो 4,70,000 रुपया खर्चे होते हैं 1 महीना में। तो अगर अब इसको इंटू करने गए ना, तो आपके करोड़ों रुपया लग जाएंगे 3 साल के अंदर या 4 साल के अंदर या 5 साल के अंदर। तो क्या करना चाहिए? तो अब इतने खर्चे, लाखों रुपए खर्चे होंगे खिलाने में। याद रखना, उस गांव में हर कोई एनिमल लवर है, तो कोई मारने वाला नहीं है, तो बच्चे होते ही रहेंगे। तो 3 साल के अंदर बच्चे हो जाएंगे, एवरेज अगर पकड़े तो करीबन 3,375।
3,375 पर डे एक एरिया का डॉगी अगर हो, अगर 5 रुपये करके भी खिलाए तो कितने खर्चे होते हैं। पर अगर हम पहले ही उस एक डॉगी का स्टेरिलाइजेशन करवा दे तो 2,000 लगेंगे कोई एनजीओ से, तो 2,000 से आपका कितना मुनाफा हुआ। उस एरिया में ज़्यादा डॉगी नहीं होंगे, डॉगी होंगे ही नहीं, और आपका लाखों रुपए बच जाएंगे। एक डॉगी के साल में 14 बच्चे होते हैं, 14 बच्चे फिर 6 महीना, एक साल बाद 14 इंटू 15 210, फिर 2 साल में 210 बच्चे, फिर 210 इंटू फिर 14, टोटल मिला के 3 साल में कम से कम पकड़ रहे हैं हम, हाँ 3,375 डॉगी हो जाएंगे उस एरिया के। कोई मारने वाला नहीं है, कोई भी एक्सीडेंट होने वाला नहीं है, सब जिंदा है, बढ़िया है, क्वालिटी होने वाले नहीं है। अब 3,375 डॉग जब 3 साल बाद हो जाएंगे, मैं एक पोस्ट किया हूँ, उसमें लिखा पूरा डिटेल्स दिया हूँ। जो एक डॉगी के साल में 14 बच्चे होते हैं तो 15 डॉगी के 14 बच्चे करके होने से कितने होंगे, वो 14 इंटू 14 करने के बाद जितने होंगे, बैलेंस जितने मदर्स है उसको ऐड करने से कितने होंगे, सब लिखा हुआ है। अब बात है इसके पीछे खर्चे कितने हैं। इसके पीछे खर्चे इतने हैं, अगर एक एरिया में 3,000 डॉगी हो तो पर डे, मैं 3,000 अप्रोक्स पकड़ता हूँ, 3,000 डॉगी और 5 रुपया खर्चा पर डे। हर रोज 15,000 रुपया खर्चा होंगे 3,000 डॉगी को खिलाने के लिए। तो 15,000 रुपया अगर हर रोज हो, तो अगर 100 फैमिली में डिवाइडेड करें तो हर फैमिली को पर डे 150 रुपया डॉगी के पीछे खर्चे होते हैं। ओके, पर डे 150 रुपया, अगर एक फैमिली का पर डे 150 रुपया खर्चे होते हैं तो 150 इंटू 30, एक महीना में 4,500 रुपया खर्चे होते हैं। अगर एक महीना में 4,500 रुपया खर्चे होते हैं तो 12 महीना में कितने खर्च होंगे। 12 महीना में एक फैमिली के 54,000 रुपये सिर्फ खिलाने में लग जाएंगे, एक फैमिली के। हाँ, अब सोच लो जो क्यों करना चाहिए स्टेरिलाइजेशन। अगर आप पहले ही उस एक डॉगी को स्टेरिलाइजेशन करवा दो, पहले एक मिनट, तो एक फैमिली के साल में लग जाएंगे 54,000। अब 54,000 अगर एक फैमिली के लगते हैं तो 100 फैमिली के कितने लग जाएंगे, करीबन 54 लाख। आपको 3,000 डॉगी को डिवाइड, अच्छा 54 लाख का 10,000 डिवाइडेड 3,000। तो आप सोचिए क्यों करना चाहिए स्टेरिलाइजेशन। अगर आप एक डॉगी को 2,000 रुपया खर्चा करके, सब कुछ 100 फैमिली मिलकर अगर 2,000 रुपया खर्चा करके उसका ऑपरेशन करवा दे तो 3 साल के अंदर 3,000 डॉगी नहीं बनेंगे। यहाँ पे पूरा डिटेल्स में लिखा हुआ है। एक डॉगी साल में 14 बच्चे देंगे, साल में, हाँ 14 बच्चे। ओके, तो दूसरे साल में 14 और 1 15 इंटू 14 तो 210 प्लस 15 ऐड किए 225 2 साल में। ओके, अब ये 225 इंटू 14 तो क्या हुआ, 3,120 प्लस 225 3,375। 3 साल में एक एरिया में 3,375 डॉगी बन जाएंगे। अब हर डॉगी को
3,000, इसको हम राउंड फिगर पकड़ ले 3,000। अगर ये डॉगी को, ये 3,000 डॉगी को पर डे 5 रुपये करके अगर हम लोग खिलाएं, खर्चा पकड़ते हैं, 1 मिनट मैं कैलकुलेटर भी लेके बैठा हूँ ना, तो 3,000 डॉगी, पर डॉगी 5 रुपये हर रोज, 3,000 इंटू 5, तो पर डे ये 3,000 पकड़े, 3,375, मगर मैंने इसको पकड़ा हूँ 3,000। अगर हो सके तो इसका शेयर भी करना, वॉच पार्टी जो भी करना है कर देना। 3,000 डॉगी पकड़ रहे इसको, तो अगर 3,000 डॉगी को हम लोग हर रोज 5 रुपये करके खिलाएं पूरा दिन में, तो हर रोज खर्चे पड़ते हैं 15,000 रुपये। 100 फैमिली है, 100 फैमिली का डिवाइडेड कर दो हर रोज 150 रुपया। अब एक दिन में जहाँ खर्चा हुए 15,000 रुपया, सोचो। हर फैमिली का काम सही ठीक नहीं होता है, कोई अच्छे काम करते हैं, कोई ठीक नॉर्मल काम करते हैं फैमिली चलाने लायक, और ये अभी लॉकडाउन चल रहे हैं। तो ये 3 साल के अंदर ये हो जाएंगे 3,000 डॉगी। अब ये 3,000 डॉगी हर रोज खिलाने में लग जाएंगे 15,000 रुपये हर रोज, सिंगल डे 15,000 रुपये। ये तो साल का पकड़ रहे हम, इसमें 6 महीने का डिवाइडेड किया हुआ है। एक डॉगी 6 महीना में 7 बच्चे देंगे, फिर 6 महीना बाद ये 8 डॉगी 7 करके बच्चे देंगे, 56 बच्चे प्लस 8 64। फिर ये 64 बच्चे 6 महीना बाद 7 करके देंगे 448। 1.5 साल में 448 बच्चे हो जाएंगे। अब ये फिर 6 महीना बाद 48 प्लस ये 56 ऐड किए तो हो जाएंगे 512। ओके, तो 1.5 साल में 512 बच्चे। फिर जब 2 साल में आएंगे ये 512 इंटू 7, तो कितने बच्चे हुए 3,548 प्लस ये 512 को ऐड किए 4,000। 2 साल में 4,000 डॉगी हो जाएंगे। देखिए, अगर ये एक डॉगी को आप अगर स्टेलाइज करवा दो, ये एक डॉगी को अगर आप स्टेलाइजेशन करवा दो, तो ये 4,000 डॉगी नहीं आएंगे। अब ये 4,000 डॉगी 2 साल के बाद जब मीटिंग होंगे, तो 4,096 इंटू 7 एक बार में 28,000 डॉगी, 28 प्लस 4,000 32,000 डॉगी 2.5 साल में। 2.5 है, उल्टा है ना। अब सोच लीजिए 3 साल के अंदर कितने डॉगी होंगे, कैलकुलेशन करते रहो। 2,65,144 6 महीना अंतर अगर पकड़े तो। अब इतने डॉगी को अगर आप 5 रुपए करके भी खिलाओगे, कितने खर्च होंगे? करोड़ों रुपए खर्च हो जाएंगे। मैं पहले ही बता चुका हूँ, उस गांव में हर कोई एनिमल लवर है, हर कोई खाना खिलाएगा, हर कोई प्यार करेगा, मगर ये आपका प्यार फ्यूचर खराब बना देंगे स्ट्रीट एनिमल्स के। क्योंकि जब एरिया में 4,000 डॉगी या 7,000 डॉगी हो जाएंगे, तो उनको खिलाने के लिए हर डे पर डे 15 से 20,000 रुपये खर्चे होते हैं। 5 रुपया करके अगर पकड़े तो 3,000 डॉगी को 5 रुपये करके खिलाओगे तो फिर भी 15,000 एक दिन का खर्चा। तो ये 15 इंटू 30 मतलब 15,000 रुपये हर रोज खिलाओगे, तो ये 10 दिन में 1.5 लाख रुपया, 20 दिन में 3 लाख रुपया, 30 दिन में 4.5 लाख रुपया खर्चे होंगे। 4.5 लाख रुपया खर्चे होंगे अगर आप एक बार में एक डॉगी को 2,000 खर्चा करके स्टेलाइजेशन नहीं करवाओगे, तो 3 साल बाद उस एरिया में 3,000 डॉगी हो जाएंगे और पर डे खर्चे होंगे 1,500 रुपया। हाँ, अगर एक डॉगी का साल में 2 बार अगर बच्चे हो, उसका हेल्थ भी प्रॉब्लम होंगे, उसको दवाई भी अलग से देने होंगे। क्योंकि हम एनिमल लवर है, यहाँ पे कोई क्रुएल्टी नहीं होने वाला नहीं, सब लोग प्यार करते हैं, उन लोग को स्टेलाइजेशन करवाना नहीं है, नेचर को ख़राब नहीं करना है। पर आपके पास उतना पैसा है तो 3 साल का ब्रेकअप दिया हूँ मैंने इसमें।
फोटो भी डाल दूंगा। 3 साल का ब्रेकअप में 3000 डॉगी बन जाएंगे। 3000 डॉगी अगर 5 रुपये का अगर पर डे खाए तो 15,000 रुपया एक दिन का, तो एक महीना में 4.5 लाख रुपया। तो 4.5 इंटू 12 45 लाख और उधर 9 50 लाख एक साल में। अगर आप वो 2000 रुपया खर्चा करके पहला डॉग स्टेलाइज करवा देते, अब आप बोलोगे इसमें लड़के हैं, अरे लड़के हैं तो क्या वो किसी और एरिया में जाएंगे, और एरिया में जाके वहाँ पे बच्चे हो जाएंगे ना। तो लड़का हो या लड़की बच्चे होने ही हैं अगर स्टेलाइज नहीं करवाए। तो इसी कारण अगर बहुत कोई कहता है जो एक बार बच्चे होने के बाद स्टेलाइज करवा दो, तो अगर हम एक बार करके भी करवाए ना तो फिर भी 3000 डॉगी बन जाएंगे। 3000 डॉगी बन जाएंगे एक बार करते करते करते। तो हर एरिया में हर कोई चंदा उठाओ, पर हर महीना हो सके तो एक डॉगी करके अपने फीमेल, अगर डॉगी को स्टेलाइज करवाना है तो पहले फीमेल डॉगी को करवाओ फिर मेल डॉगी को करवाओ, मगर स्टेलाइजेशन करना ज़रूरी है। अगर आप स्टेलाइजेशन नहीं करवाओगे तो 3 साल बाद उस एरिया में इतने डॉगी हो जाएंगे जो क्वालिटी ऑटोमेटिक होने लगेंगे, क्योंकि प्यार हद से गुजर जाएंगे जब, तो वो जहर बन जाते हैं। तो हर एरिया में स्टेलाइजेशन करना ज़रूरी है, पहले फीमेल फिर मेल, मगर करना है। अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो आपके पैसे के पैसे खर्च होंगे, क्वालिटी होंगे, और एरिया में डॉगी बढ़ते रहेंगे, लाखों डॉगी बन जाएंगे। और हम लोग कितने स्टेलाइज करवाते हैं, बच्चे तो दनादन होते हैं, तो स्टेलाइज कितने करते हैं, क्योंकि पैसे लगते हैं। तो सबको चंदा उठाओ, डोनेशन उठाओ, अपने पैसे से या बगल वाले के पैसे से मांग के स्टेलाइज करवाओ, क्योंकि ये करना ज़रूरी है। तो यही कहना था। थैंक यू, गुड नाइट।